In capital market we have money market, is where we are using the money for certain requirements. That can be short term requirements of the company, that can be working capital requirements for any establishment. Whereas capital formation यानी कि जहां हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो सबसे पहले तो एवरी कंपनी रेजेस द मनी थ्रू सम और द अदर मेथड्स. तो जैसे अभी मैं मतलब कि आई वाज रीडिंग यस्टरडे दैट वन ऑफ द वेरी फेमस मामा अर्थ, दे आर गोइंग टू रेज capital through EIPOs. So primary market is where the first time the issues यानी कि shares को मतलब कि it is floated in the market. There the company and the investors are having the direct interaction. यानी कि direct का मतलब ये है कि the company is going to sell out and the investors are going to buy. वो अलग बात है कि उसके लिए intermediaries होते हैं जो इस काम को करते हैं. But in secondary, already issued securities, whether it is debenture, bonds, or it might be shares, they are sold and bought. The name for secondary is stock market. We are normally having medium to long term fund, banks, institutes, companies, all are there. 10 रुपए का भी शेयर होता है और कितनी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स के भाव बहुत ज़्यादा है. You can sell out the shares or debentures immediately, but of course it is risky. For the past few days the market has been in the decreasing era, so बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया है, but the return can be high if you are taking that risk. Now let us come to the primary. We had learned offer through prospectus, the most common, giving advertisements in the newspapers. ऑफर फॉर सेल यानी कि अपने जब शेयर मार्केट कम हो तो अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं दोज आर सोल्ड टू सम इंटरमीडियरीज. देन प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब ओनली टू सेलेक्टेड पीपल. राइट्स इश्यू इज फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रेशियो में देना. एंड EIPOs आर थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. Then next is what are the functions of secondary market? Stock मतलब कि तो buy and sell, and it is regulated where we sell it out, stock exchange. What does it do? Provide liquidity, determination of price because that is on the demand and supply theory. Safety of transactions, you cannot directly sell out to someone, हो सकता है वो cheat करे. And with more capital formation, more economy, definitely we have some scope, and it is also the economic barometer of any country. किसी भी कंट्री का जो एक इकोनॉमिक बैरोमीटर है वो वहाँ का एक्सचेंज होता है. लाइक इफ यू रिमेंबर इन 10th standard 9th standard we had studied कि जर्मनी में जब वॉर हुआ था, during the First World War, the American Wall Street had crashed, and that brought recession in America. That means वहाँ का economy उस वक्त में कम था. So that is the barometer. The next is फर्स्ट. पहले क्या होता था, we did not have the trading procedure was using a broker in a physical manner. आप किसी भी जगह पर गए, broker है, he is a stock broker, you asked him to buy some shares and it was there with you. आपने उसको पैसे दे दिए, उसने आपको दिया, and it was in the physical form. It would be like a certificate you have. आप लोगों के पास जो सर्टिफिकेट होता है, दिस इज टू सर्टिफाई, वैसा लिखा होता था, दिस इज टू सर्टिफाई दैट द बियरर ऑफ दिस शेयर होल्डर मतलब कि होल्ड्स 100 शेयर्स ऑफ दिस कंपनी विच ही बॉट एट दिस रेट, ऐसे करके. बट लेटर ऑन
there were many cases of duplication, cheating, malpractices. So the stock exchange had regulated it with what we call as the electronic form, and all the shares now are kept in the electronic form. For that we use a डीमैट अकाउंट. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी सेलेक्ट अ ब्रोकर. ये आपका जो है सीक्वेंस लिखने के लिए आ सकता है, मीन्स इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, व्हाट इज द फर्स्ट वन, देन सेकेंड वन क्या है, थर्ड वन क्या है, ये उसमें आ सकता है. तो द वेरी फर्स्ट इज यू सेलेक्ट अ ब्रोकर. नाउ द ब्रोकर जो है he might be already existing, मतलब you can go to the web, you can find out, or you might be having कोई आपके घर के आसपास में भी हो. He will be responsible to buy or sell the shares for you. आजकल लोग अपने आप भी करते हैं. It's not like कि they need a broker. Then the broker will be opening a demat account. The full form of demat account is dematerialization, यानी कि keeping your shares in the electronic form. फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास अगर बैंक अकाउंट है तो उसी बैंक में भी आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है. जैसे आपके बैंक में दिखाई देता कि आपके पास इतने कैश एंड डीमेट में आपके जो है नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं उसकी वो और उसकी वैल्यू जो है वो बता दी जाए. नाउ व्हेन यू हैव open this account, then only you are eligible to place an order. Now you will place an order or you will tell the broker कि आपको किस कंपनी का कितने शेयर्स खरीदने हैं. This is when you are buying the existing shares, because for the EIPOs, for the prospectus you apply it. उसका तो एक टाइम होता है, लिमिट होती है कि आप कब अप्लाई कर सकते हो. अगर कोई भी कंपनी अपना जो है आईपीओ उतारती है तो देन देयर इज अ सब्सक्रिप्शन होता है, एप्लीकेशन देना होता है. बट इन ट्रेडिंग प्रोसीजर इज फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर्स. नाउ यू हैव प्लेस द ऑर्डर, द नंबर ऑफ शेयर्स, द अमाउंट ऑन विच द शेयर शुड बी बॉट. Then now what the broker will do is, जैसा आपने बोला है कि मुझे शेयर को खरीदना है या बेचना है, he will execute. Then once he has executed, he will be giving you the contract note कि आपका जो है ये शेयर बिक गया है या फिर खरीद लिया गया है. When he has informed, within 2 days you have to settle the money, that is T plus 2, मतलब trading plus 2 days. And it should not be Saturday, Sunday. Saturday, Sundays are not taken. It is trading day plus 2 working days जो है that is taken for the. तो इसको हम लोग जो है पे इन डे एंड पे आउट बोलते हैं. जब आया तो पे इन, गया तो पे आउट डेज बोलते हैं. एंड द सेटलमेंट पीरियड इज टी प्लस 2 days. ये पेपर में आपका एज एन एमसीक्यू आ सकता है, नॉट लाइक एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा. Next is, who is the depository service provider? ये आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है.
दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज कट इन योर सिलेबस। डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर होता है जो आपके इस डीमैट अकाउंट को, those who are authorized by government to keep your demats, they are all depository service provider। और इंडिया के अंदर है NSDL, दैट इज आपका नेशनल, ये पेपर में 1 मार्कर में आ सकता है आपका, सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल सिक्योरिटीज, सॉरी, डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। इन इंडिया वी हैव, मीन्स जो कंपनीज होती हैं वो किसके साथ अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं, वेदर विद NSDL और CDSL, दैट डिपेंड्स ऑन एवरी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कि वो किसके साथ करना चाहते हैं। नाउ कौन है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कौन है डिपॉजिटरी? कभी कभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड डिपॉजिटरी दोनों एक ही इंसान या एक ही कंपनी हो सकती है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपका जो है वो होता है हु इज एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। और डिपॉजिटरी कौन है? इट इज द इंस्टीट्यूशन विच होल्ड्स दी सिक्योरिटीज। हमारे यहाँ पर मेनी ऑफ द बैंक्स आर देयर, ICICI इज देयर, वी हैव प्राइवेट जैसे कार्वी है, देर आर डिपॉजिटरी, मतलब ये कंपनी होती है, ये एक इंस्टीट्यूशन होता है जिनके पास हमारा शेयर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है, और उनके जो एजेंट्स होते हैं उनको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। जो कंपनी शेयर्स को इशू करती है, दे आर इशूइंग कंपनी, और जो उसको खरीदता है उसको इन्वेस्टर्स बोलते हैं। द 4 कंपोनेंट्स आर DP, डिपॉजिटरी, इशूइंग कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। आपके पेपर के अंदर दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज NSDL एंड CDSL। द फुल फॉर्म इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये 2 मेन डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके थ्रू कंपनीज जो है हमारे अकाउंट्स को, दैट इज सिक्योरिटी अकाउंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे आर कीपिंग इट। दिस I think it is there in NCERT, but it was cut in your syllabus. Next is, as I said, आप इन्हीं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में से किसी एक के पास आपका जो ब्रोकर है वो ओपन करता है आपका डीमेट अकाउंट, इन्हीं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में से किसी एक का। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आई हैव ओपन विद पेटीएम, तो मैंने किसके साथ में किया हुआ है वो मेरी प्रॉब्लम है, मेरा मतलब कि चॉइस है। So now what is DMAT? As I said, it is dematerialization, conversion of securities in electronic forms। पहले हमारे फिजिकल फॉर्म्स होते थे, वी यूज टू हैव द फिजिकल सर्टिफिकेट्स, बट ड्यू टू माल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड, कभी कभी क्योंकि उसमें लिखा होता है दिस इज टू सर्टिफाई द, मतलब कि बियरर, यानी कि अगर आपका सर्टिफिकेट मेरे पास है तो मैं उसे यूज कर सकती हूँ, मेरा आपके पास है तो आप यूज कर सकते हो। सो नाउ दैट इज वाई द डीमेट अकाउंट इज ओपन विद एनी ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो हमारे लिए ओपन करके देते हैं। एंड देन ये जो डिपॉजिटरी होती है उनके पास हमारा जो शेयर होता है, चाहे वो 1 शेयर हो या लाख हो, दैट इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड दैट इज कॉल्ड एज डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट हमें अलग से ओपन करना पड़ता है। नाउ ओवरऑल हम लोगों ने पढ़ा दैट वी आर हैविंग स्टॉक एक्सचेंज, द कैपिटल मार्केट, जहां हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स को हम खरीदते या बेचते हैं। हमने करा, मतलब कि ये भी पढ़ा that to buy or sell out these shares we require a demat account. We have depositories
those who might be registered with either NSDL or CDSL, राइट? तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट कौन करता है? 1992 स्कैम अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो तो तब तक we did not have any kind of regulations. In fact, if you look back to 1940s, गुरु मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो अभिषेक बच्चन की, तो उसके अंदर यू विल सी दैट पहले ज़माने में क्या होता था, जो कंपनीज होती थी वो उनको पैसा उठाना है तो या तो वो अपने रिलेटिव्स या फिर दे वुड बी टेकिंग द लोन फ्रॉम देयर मनी लेंडर. बाद में उन्होंने ये लगाना शुरू किया कि अगर आप हमारे कंपनी में इतना पैसा लगाओगे तो हम आपको प्रॉफिट देंगे. दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट. तो स्टॉक मार्केट पहले ज़माने में क्या होता था, एक टेबल के ऊपर खड़े होकर जो कंपनीज हैं वो अपने टट्टूस जो हैं उनको बिठा देगी कि तुम जितने ज़्यादा का बेचोगे उतना तुम्हें कमीशन मिलेगा, एंड दे विल बी शाउटिंग लाइक अ मच्छी मार्केट, एबीसी कंपनी एबीसी कंपनी, सीडीसी कंपनी सीडीसी कंपनी करके. एंड इन दिस मैनर देयर द शेयर मार्केट एक्चुअली स्टार्टेड. बट देन टू रेगुलेट इट वॉज गिवन अ प्रॉपर फॉर्म जिसको स्टॉक मार्केट कहा गया. हमारे पास जो है वी आर हैविंग NSE, दैट इज आपका जो है National Stock Exchange. We have BSE, that is the Bombay Stock Exchange. It was the first one to be established in India. Then we have Delhi Stock Exchange. अब जब कंपनीज अपने IPOs को उतारती हैं, when they are floating out their shares, पहले क्या करना पड़ता है? They will be asking the people to apply. मेरी कंपनी है, मैंने बोला अप्लाई करो, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तो मेरे पास मिनिमम मैं कहूँगी कि एक शेयर की कीमत इतनी है, तो आई शुड रिसीव एप्लीकेशन फॉर मिनिमम 2 लाख रुपीज में 90%, 1,80,000 का. इफ आई हैव रिसीव द एप्लीकेशन, अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप देखना 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिखा होता है. तो मुझे अगर मिल गया एप्लीकेशन तो उसके बाद आई विल अलॉट. अब मैंने अलॉटमेंट दे दी है. अलॉटमेंट देने के बाद क्या होगा, आई हैव टू लिस्ट माई कंपनी जहां पर आप उसे बाद में खरीद या बेच सकते हो. ईदर इट कैन बी BSE, इफ माई कंपनी इज नियर बाय तो मैं बॉम्बे स्टॉक में कर सकती हूँ. देन आई कैन डू इन DSE दिल्ली में या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस में. एंड देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस कि किस स्टॉक को आप NSE में डाल सकते हैं. सो दिस इज हाउ द स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टेड वर्किंग. देन स्टॉक एक्सचेंज में जाते तो ऐसा लगेगा यू आर सिटिंग इनसाइड अ मच्छी बाजार जहाँ पे लोग शोर मचा रहे होंगे. स्कैम 92 में भी दिखाया. बट नाउ देर इज अ प्रॉपर इंटरनेट. ईच जो आपके कंप्यूटर है दे आर कनेक्टेड सर्वर के साथ में, और जैसे जैसे कंपनीज के शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं वो सारा उसमें आपका स्क्रॉल होता रहता है. But all these were not so easy because of the major scam that was held in 1992. और इसीलिए बाद में जो है आपका सेबी, दैट इज आपका जो है स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था इन ऑन 12th इट स्टार्टेड फंक्शनिंग वेरी लेटर, बट इसको जो है कंस्टिट्यूट किया गया था टू स्टडी हाउ द स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स. इज देयर एनी माल प्रैक्टिस, क्योंकि उस वक्त में काफ़ी लोगों का जो है काफ़ी नुकसान हुआ था. देयर वर मेनी डमी कंपनीज विच वर फॉर्म्ड. अगर आपने स्कैम 92 देखा हो तो आप देख सकते हो. सो दैट इज वाई दैट वाज द मेन वॉज टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज. जैसे उस वक्त में ACC सीमेंट जो था उसका जो दाम था वो एकदम से कि इट वॉज फ्रॉम 10 रुपीज़ तो 300 रुपीज़ चला गया. सो टू रेगुलेट दैट स्टॉक एक्सचेंज, डिमांड एंड सप्लाई थियोरी, क्योंकि वो तो डिमांड को तो हम क्रिएट करते हैं. अगर हम कहते हैं वो सामान नहीं मिल रहा तो हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं. सो डिमांड एंड सप्लाई थियोरी
Then rights. The first function is to regulate the stock market, to protect the investors, ये जो चार मैंने लिखे हैं, दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 फंक्शंस. मतलब स्टॉक मार्केट में जो हम खरीदते हैं बेचते हैं, दैट शुड बी रेगुलेटेड, देयर शुड बी सम कंट्रोल. टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, उनको टाइम टू टाइम जो है दे शुड बी गिवन द नॉलेज. टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस, सर्टेन टाइम्स देयर माइट बी फ्रॉड. कभी कभी कंपनीज जो हैं वो आपके जो है दे यूज, अभी भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है, माल प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग. अगर मान लो आज मुझे पता लगा कि मेरी जो कंपनी है उसने बहुत प्रॉफिट अर्न किया है, कल वो न्यूज़पेपर में आएगा, बिकॉज वी हैव टू पब्लिश इट एज हमारे एनुअल या हाफ ईयरली जो रिजल्ट्स हैं उन्हें, तो डेफिनेटली मेरी कंपनी के जो शेयर्स है वो बढ़ जाएंगे. तो मैं तो खरीद नहीं सकती हूँ, तो आई विल बी मेकिंग अ डमी अकाउंट किसी मेरे फ्रेंड या किसी को बोलकर, एंड आई विल बी बाइंग द शेयर्स. और जब मतलब कि दाम ज़्यादा हो जाएगा तो मैं उसे बेच दूँगी. उल्टा भी होता है. तो इन दिस मैनर पीपल मतलब कि इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, रिगिंग करते हैं, प्राइस को जानबूझकर बढ़ाते हैं. तो इन सब को रेगुलेट करना, देन देयर शुड बी अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट. जो ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, दे शुड नॉट मिस यूज देयर पावर्स. उसके लिए द सेबी वॉज इंट्रोड्यूस्ड. तो दे उनका जो उनके जितने भी फंक्शंस हैं उसको हम 3 में डिवाइड करते हैं. रेगुलेशन, जहां उनको रेगुलेट करना पड़ता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जहां इन्वेस्टर्स के मनी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है वहां प्रोटेक्टिव, क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है, तो उस वक्त पे देयर माइट बी सर्टेन थिंग्स विच माइट बी हिडन. तो प्रोटेक्ट करना, जो खरीदने वाली कंपनी वो इन्वेस्टर है. देन साइड बाय साइड गिविंग ट्रेनिंग, डेवलपिंग द कोड ऑफ कंडक्ट so that the brokers and sub brokers are not misusing their powers. तो उसको भी मतलब कि करते हैं. इश्यू द न्यूज़ पेपर्स, न्यूज़ लेटर्स पब्लिश करते हैं, वो टीच करते हैं दी जो लोग होते हैं उनको थ्रू डिफरेंट चैनल्स. लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के तो अपने सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं. सो दे डेवलप सर्टेन कोर्सेज, दे डेवलप सर्टेन, तो जिससे कि पीपल आर अवेयर. So this is how the entire financial market works.